That's Manoj. Evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLife 360. Today, let's begin the best of health and best of fitness journey by understanding a few things right. What to eat, how to eat, and when to eat. And trust me, for those of you thinking, हमें क्या इतना भी नहीं आता, you're in for a ton of learning and such simple factors which will help you simplify your health journey. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. This is the second session of this new series that we are starting. And, I always tell people that why do you need a community? Why do you need to, keep coming over these sessions and learn a few things every single time? Because when you come on these sessions, what really happens over here is that your mindset changes. And I know that it is almost impossible to do everything right, Make sure that you got the right nutrition and the right amount of exercise, not too much and not too little. You'd have found the safest way to health. But even if you start doing few things, you start taking a few baby steps, you will be on the path to good health. We're talking about today's simple topics about what to eat, when to eat. Now, this is one thing that we have noticed that makes the maximum difference to good health. We have seen so many people who were, who had high sugar values, either they were pre-diabetic or in diabetic state, and in just a few weeks, their sugar levels reverse. So try and make sure that if there's one thing today you're going to get from this session, is make sure that you finish your dinner by 6:30 or 7 latest. Because the worst thing that you can do is to have a late night dinner and go to sleep. We have found that this one single factor really has a significant impact on your health. Today, you are very lucky because you are going to be listening from somebody who had his health completely out of control. And when Manoj came onto this community, learned a few things, he changed his health around 180 degrees, and now he's helping scores of people to achieve the same. So listen to Manoj very carefully because what he has to say will teach you, what to do, what to eat, when to eat, why to eat. And even when you start doing wrong things, it will help you to make a wise decision of doing less of the bad things. So when you do less of the bad things, you automatically get into, you start improving your health. So listen to Manoj very carefully today. Over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. And again, I'll be saying the same thing, repeating again and again. Everyone whoever is in this group, और उसको जो भी जो health का benefit मिला है, that is just because of you. Especially for me and for my family, not only me, my family. Everybody got benefited out of this. And I'll request everyone कि आप यहाँ पे सुनिए, समझिए. कुछ सेशन हमारे होते हैं जहाँ पर आप
सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मैं ज़रा भी आगे चलता हूँ आज के प्रेजेंटेशन के लिए। और ओके, स्क्रीन इज क्लियर? हेलो? Yes. Yeah. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो सबसे जो जो हमारी ज़िंदगी की प्राइमरी नीड है उसके ऊपर, और उसको ठीक ठाक कैसे रखा जाए, क्योंकि उसी से सब चीज़ का जुड़ाव है ना, खाने से। और खाना क्यों है ये हम देखेंगे। आप खाना क्या है ये देखेंगे आप आज। खाना कैसे है, कितना है, ये सब हम आज देखेंगे। ओके, और इसको हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, इसमें से जो भी यहाँ बताया जाएगा आज, मैं एक भी चीज़ फॉलो नहीं करता था, एक भी चीज़। ओके, अब जब समझ में आई बात आस्ते आस्ते, और फिर उससे जो हमको हेल्थ बेनिफिट मिले, ये तो हम कभी और बात कर सकते हैं। कुछ बात शायद मैं बीच बीच में बोलूँगा कि जो हमको बेनिफिट मिले हैं, ये अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल आज के हिसाब से भी, और अनबिलीवेबल हमारे आने वाले कल के हिसाब से भी। ओके, तो हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं अपने खाने के साथ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड लिखा है, इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर माइंडफुल ईटिंग साइकिल। तो कहा जाता है कि आप जो भी करो सोच समझ के करो, है ना। ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बूढ़ों बुजुर्गों ने हमें सिखाया हुआ है कि जो भी करो सोच समझ के करो। ऐसा कोई काम मत करो जिसके वजह से आपको कल पछताना पड़े। तो वही चीज़ खाने के ऊपर भी है, क्योंकि हमारा खाना ही हमारा शरीर का और स्वास्थ्य का आने वाला कल बनाता है। हमें ये समझना पड़ेगा ये माइंडफुल ईटिंग क्या है। माइंडफुल ईटिंग ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा हम खाते क्यों हैं, हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और कहाँ का उगाया हुआ और कहाँ और कब खाना चाहिए। ओके, तो जब आप ये बातें समझ जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा, इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, कि हम जो भी काम करें सोच समझ के करें। ओके, तो चलो आगे चालू करते हैं और समझते हैं पहले कि खाना क्या है हमारे लिए। देखो, जहाँ तक खाने का सवाल है, अगर किसी ने आपको पूछा कि आज आपने क्या खाया, तो बोलोगे रोटी खाओगे, रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, कुछ बोलेंगे पनीर खाया, कुछ बोलेंगे हमने पराठे खाए, कोई बोलेंगे हमने मच्छी खाई, किसने बोला मटन खाया। लेकिन एक बात आप समझ जाओ, ये जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, ये सिर्फ आपकी 2 इंच की जबान के हिसाब से आप बोल रहे हो, जो आपकी जीभ है उसके टेस्ट के हिसाब से आप बोल रहे हो। शरीर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, इन नामों से कोई लेना देना नहीं। आपने अगर रोटी खाया, शरीर कहता है कि मेरे को आज कार्बोहाइड्रेट मिला। अगर आपने मछली खाई, शरीर कहता है कि मुझे आज प्रोटीन मिला। अगर आपने सब्जियां खाई तो शरीर कहता है कि मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले, कुछ कुछ मुझे फाइबर मिला, कुछ मुझे विटामिन और मिनरल्स मिले। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं? तो यही चीज़ आपको समझनी है कि हम जो भी खाते हैं हमारे शरीर के लिए वो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देता है ना। तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब वो जिसको आप अपने आंखों से कभी कभी देख भी नहीं पाओगे, तो इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना वजन है। उस वजन को हम आज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस यूनिट को हम यूज़ ही नहीं करते हैं। कितनी बार आपने मिलीग्राम यूज़ किया, कितनी बार आपने माइक्रो मिलीग्राम यूज़ किया वर्ड को वजन करने के समय? नहीं करते हम उसको यूज़। ठीक है, अनलेस अनटिल सोना है। तो यहाँ से तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो चीज़ों को आप बहुत कम क्वांटिटी में खाते हो एक्चुअली आपके शरीर के लिए सोना है। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपको दिन भर में 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है, तो आपको 200 ग्राम तोल सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि आपको 20-25 ग्राम तेल खाना है, फैट खाना है, तो आप
खा वजन कर सकते हो, देख सकते हो उसको कि हाँ इतना ग्राम है। आप प्रोटीन अगर आपको कहा जाए कि आपको 75 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आप उसको वजन करके देख सकते हो, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप देख नहीं सकते। तो ये दो चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है जिससे आपको आपके रोजमर्रा के काम करने की ताकत आपको मिलती है। फैट क्या करता है? फैट आपको ऊर्जा भी देता है, और शरीर में हमारे कई ऐसे अंग हैं जिसमें फैट की ज़रूरत होती है। तो फैट बुरा नहीं है, फैट शरीर के लिए ज़रूरी है अगर उसे हम उस सीमित मात्रा में खाएं जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है। तकलीफ कब आती है? जब हम उसे ज़्यादा खा लेते हैं। प्रोटीन ये आपके मसल को बनाता है, ये आपके कई हार्मोन्स को बनाता है, कई आपके लिपिड को बनाता है, ये आपके खून में भी ज़रूरी है, ये आपके हीमोग्लोबिन जो खून के अंदर होता है उसमें ज़रूरी है। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये आपके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल, प्रोटीन और फैट्स आपके आंखें बनाता है, लेकिन आंखों की रोशनी कौन डिसाइड करता है? विटामिन डिसाइड करता है, विटामिन ए डिसाइड करता है। तो आपने देखा होगा कि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा है ना। तो विटामिन और मिनरल्स आपके काम करने की क्षमता को अच्छा करते हैं। और साथ में फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोकेमिकल्स ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसको समझते नहीं। इसको इस तरह से देखिए, पहले तो ये होता क्या है? फाइटो मतलब प्लांट, पेड़ पौधे, और न्यूट्रिएंट मतलब उसके अंदर एक खास तरह के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो उन पेड़ पौधों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल है। आप ये देखिए कि हमें जब ठंड लगती है हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, हमें जब बारिश आती है तो हम रेनकोट लेके बाहर चलते हैं, छाता लेके बाहर चलते हैं, है ना। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं, क्या ये कभी रेनकोट लगा के खड़े होते हैं? क्या ये कभी ठंड में कभी ऊनी कपड़े पहन के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि उनको सर्दी नहीं होती, उनको जुकाम नहीं होता, उनको बुखार नहीं होता, और हमें हो जाता है? वो है उनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स की पैदाइश, या उसके अंदर की समावेश है उसके अंदर, जिसके वजह से उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन करिए कि वही न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिले, तो जब वही न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपका शरीर भी उसी तरह से रेसिस्ट करेगा, आपके बीमारी नहीं आएगी आपको। मैं ये नहीं कहता कि आपको ऊनी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं, पॉइंट वो नहीं। पॉइंट ये है कि ठंड से जो होने वाली बीमारियां होंगी उनको फाइट करने की इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। ओके, तो हम चलते हैं अगले सीट पे। तो फिर हमें खाना क्या कितना चाहिए, है ना। ये कौन सी बात हुई कि अभी तो हम तो यार जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो फिर इन चीज़ों को हम कैसे पा सकते हैं, जो हमने पांचों न्यूट्रिएंट्स की बात की अभी पीछे वाले स्लाइड में। तो एक ये आइडियल प्लेट हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और काफ़ी रिसर्च के बाद डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, कि इसके अंदर दिन भर में अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें कितना फ्रूट होना चाहिए, कितने आपके प्रोटीन के सोर्स होने चाहिए जो कि आपके दाल या फिर अंडा या फिर फिश या तो मटन से मिलता है आपको, कितना उसके अंदर दूध और दही होना चाहिए, कितना उसके अंदर नट्स और सीड्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम बात करते हैं, कितना उसके अंदर आपके फैट्स और ऑयल होने चाहिए, तेल वगैरह जो हम बात करते हैं, घी, कितना परसेंट उसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल होने चाहिए, और या फिर हरे पत्ती की सब्जियां होनी चाहिए, और कितने उसके अंदर अनाज होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब रहेंगी उसके अंदर तो आपके शरीर को सब कुछ मिलेगा। अनाज आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, वेजिटेबल और ग्रीन फ्रूट्स वगैरह आपको फाइबर और विटामिन मिनरल्स देंगे, फैट और ऑयल्स आपको फैट देगा, नट्स आपको अच्छे फैट देगा और प्रोटीन देगा, मिल्क आपको अच्छा फैट देगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी देगा, साथ में प्रोटीन भी देगा, एग फिश मीट आपको प्रोटीन देगा, और अगेन फ्रूट जो हमने बात कर ली आगे कि उस वजह से आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और फाइबर मिलेगा उससे। तो इस तरह से अगर आपने अपने प्लेट को अपने कंबाइन किया तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम ये बात करेंगे कि क्या आप अपने खाने को, जो आपका सुबह का सबसे पहला खाना होता है, आप ये सारी चीज़ें मिक्स रखते हैं उसके अंदर? क्योंकि हमने कंप्लीट खाने की बात की, ऐसा नहीं कहा कि आपको सिर्फ एक ही टाइम पे वो सब खाना है, नहीं, आप जब भी खाओ तो आपको ये सब कंबाइन खाना होता है, क्योंकि कई चीज़ का फ़ायदा कई चीज़ से मिलता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अपना घर बनाए टाइम पे आज आज आज
आज मैं ईंट लगा दूंगा, कल मैं उसमें रेती डालूंगा और परसों उसमें सीमेंट डालूंगा और 4 दिन बाद पानी डालूंगा, बिल्कुल नहीं। जब आपको दीवार बनाना है, घर बनाना है, तो आप उसी वक्त सब कुछ साथ में डालोगे ताकि वो सब आपस में काम करके अच्छा सा दीवार और फिर अच्छा सा घर बनाए। उसी तरह से आपका शरीर है। अगर आप बोलोगे आज मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के सिर्फ एनर्जी दूंगा अपने बॉडी को, तो सॉरी सर, उस एनर्जी के लिए बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए। आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपको विटामिन मिनरल्स भी चाहिए। मैंने कहा ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चाहिए, तो वहाँ से मिलेगा। तो आपने क्या क्या खाना है? आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि रिफाइंड नहीं। रिफाइंड मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ है उसके अंदर कुछ चीज़ें निकाल दो आप, और भी कुछ चीज़ें आप खा लो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो। जैसे एग्जांपल के लिए गेहूँ, गेहूँ का छिलका या जवारी का छिलका या बाजरे का छिलका या रागी का छिलका, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। लेकिन अगर आप मैदा खा रहे हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके अंदर फाइबर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ फिर प्लेन कार्ब्स है। ओके, जिसकी वजह से आपको फाइबर की कमी होगी और कई आगे सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो जब हम आगे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे तब उसमें बताएंगे। कहने का मतलब है कि आपको ये खाना चाहिए, प्रोटीन आपने खाना चाहिए। प्रोटीन आप नहीं खाओगे, आपके मसल्स कहाँ से बनेंगे, आपके सेल्स कहाँ से रिपेयर होंगे, है ना? कहाँ मिलता है ये आपको? दालों में मिलता है, स्प्राउट्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, और नॉनवेज वगैरह आप चिकन, फिश, मटन, इन सब चीज़ों में मिलता है, वहाँ से आप कर सकते हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर तरह के फ्रूट, हर रंग के फ्रूट, हर रंग की सब्जियाँ खाना चाहिए। अलग अलग रंग अलग अलग बेनिफिट देता है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप देखिए कि आपको जो खा रहे थे गलत चीज़, उसमें से क्या क्या निकाल देनी है। सबसे पहले रिफाइंड कार्ब, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ मैदे से बनी हो उसको निकाल दीजिए। होल ग्रेन को आप पिसा के उसके आटे को यूज़ कर सकते हो, सिर्फ मैदा खाने की ज़रूरत क्या है? आप उसको निकाल दीजिए। आप देखिए ना क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती है। आप जितना पिज़्ज़ा खाते हैं, जितना ब्रेड खाओगे, जितना आप बर्गर खाओगे, वड़ा पाव खाओगे, समोसा खाओगे, ये सब वही तो है, और उसी की वजह से तकलीफ आती है। सैचुरेटेड फैट आप अपने लाइफ से निकाल दोगे। अब सैचुरेटेड फैट मतलब क्या है? आप सिंपल शब्दों में समझ जाओ। सैचुरेटेड फैट मतलब वो चीज़, वो फैट की वैरायटी जो रूम टेम्परेचर पे भी जम जाए, उसको आपकी लाइफ से निकाल दो। ओके, वैसे और भी कई तरह के फैट है जो निकाल देना है, बट हम सैचुरेटेड फैट की पहली बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप कोई भी पैकेट फूड अगर खरीदते हो आप उसमें देखिए ना पीछे कितना सैचुरेटेड फैट है, तो उसके चार्ट में लिखा होता है। तो बेसिकली अगर आपने सैचुरेटेड फैट जो पैक आइटम जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसमें उसको अगर आपने निकाल दिया तो सैचुरेटेड फैट आपको ऐसे भी निकल जाए। ओके, तो आपने क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ निकाल देनी है? आपने कैलोरी डेंस फूड को अपने लाइफ से निकाल देना है ना। कैलोरी मतलब ये जो आपके शरीर को एनर्जी देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतनी एनर्जी ले लेते हैं जितना हम यूज़ नहीं करते। अब उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का एक जो भी एनर्जी है उसका एक उसकी एक आदत है, वो जब ज़्यादा हो ना तो उसी रूप में नहीं बैठता चुपचाप, वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके फिर जाके बैठ जाता है, और फिर जब ज़रूरत होगी तब वहाँ से उठ के आ जाता है। लेकिन इंसानों में ये कन्वर्जन ना बहुत बेकार है। इंसानों में कन्वर्जन क्या है, किसी भी जानवर में, मतलब इंसान भी एक जानवर ही है। जानवर की प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा कैलोरी अगर खा लें और कैलोरी को अगर हमने यूज़ नहीं किया, बर्न नहीं किया, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करके कहीं बैठ जाएगा। तो कन्वर्ट करके क्या बनता है, वो फैट, चर्बी, और फिर कहीं शरीर के हमारे अलग अलग हिस्सों में जाके बैठ जाएगा और फिर हम आस्ते आस्ते मोटे होते जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने कैलोरी डेंस फूड कम कर देना। ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जो तुरंत एनर्जी दे उसको बंद कर देना। इन सब चीज़ों से आपका वजन बढ़ेगा। और हमें उसको किससे रिप्लेस करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है न्यूट्रिएंट डेंस फूड से। ऐसा खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, जो हमने शुरू में 4-5 चीज़ें पढ़ी है, कि उसके अंदर एक अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, रिक्वायर्ड अमाउंट में आपके फैट भी हो, और विटामिन और मिनरल्स भी। तो वो न्यूट्रिएंट डेंस अगर आप फूड खाया तो वो आपके बॉडी का एक
अच्छा होलसम ग्रोथ होगा। ओके, आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहेगी, आपकी जो काम करने की एबिलिटी रहेगी वो बहुत टॉप पे रहेगी। ओके, आपके काम करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये डिफरेंस देख लीजिए आप, अगर आप 2 कप पाइनएप्पल और 1 कप ब्लूबेरी खाएं, मतलब 3 कप आपने खा लिया है ना, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरी मिलती है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जो हम कप की बात कर रहे हैं ना, 1 कप मतलब 200 ग्राम फ्रूट के मामले में। आप इमेजिन करिए आपने 600 ग्राम खा लिया, आपको सोचो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए उसके अंदर, और वो सिर्फ 300 कैलोरी है। और जबकि एक सिंगल ब्रेड पकौड़ा जो आधा है, पूरा भी नहीं है, वो आपको 300 कैलोरी दे रहा है। इमेजिन करिए क्या दे रहा है आपको, उसके अंदर है क्या? उसके अंदर तेल भरा पड़ा है, उसके अंदर आलू भरा पड़ा है, उसके अंदर मैदा भरा पड़ा है ना। और जो तेल है वो तेल भी ट्राइग्लिसराइड से भरा पड़ा है, क्योंकि जो उसको तल रहा है इंसान, वो एक ही तेल को बार बार यूज कर रहा है। ये डिफरेंस है। अच्छा खाना, कैलोरी डेंस फूड जो राइट में है, ब्रेड पकौड़ा, और न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड जो आपके लेफ्ट में है। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें रिफाइंड फूड नहीं खाना, शुगर नहीं खाना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, हमें कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, और ज़्यादा के साथ साथ में कब तक पीनी चाहिए, मतलब कब, मतलब दिन भर में कब तक पीनी चाहिए, ये एक अलग चैप्टर में आपको बताया जाएगा। हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, हमें कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना चाहिए, और हमें सोने के टाइम पे कुछ नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जब तक सूरज उगा हुआ है ना, सनसेट से पहले, जैसे कि फरूक जी ने भी बताया कि हमको 6 साढ़े 6 बजे तक आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए, उस वक्त खाना चाहिए। ओके, आपको डाइट रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना चाहिए। आपकी डाइट मतलब उसमें फ्रूट और वेजिटेबल में एकदम रिच होनी चाहिए। देखो, आप एक काम करिएगा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हम लोग एक अनलिमिटेड थालिया कल्चर है जिसको हम देखते हैं कई जगह पे और हम खाने जाते हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जब भी वहाँ जाएंगे, आप देखिएगा कि उसमें से कितनी वेजिटेबल वाली सब्जियां हैं। मैं वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ। अगर छोला को वो सब्जी बोल के बेच रहा है तो वो सब्जी नहीं है। अगर वो पनीर को सब्जी बोल के दे रहा है, क्योंकि मैं कई बार पूछता हूँ, बोला भैया इसमें सब्जी किधर है, तो बोलता है ना पनीर। पनीर सब्जी नहीं है। सब्जी मतलब जो आपको सब्जी वाला बेचता है, सब्जी वाला पनीर नहीं बेचता। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, भिंडी हो गया, लौकी हो गई, बैंगन हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, है ना, ऐसे वैरायटी के नहीं मिलेगा आपको सब। आप अपने खाने में प्रीबायोटिक ऐड करिए। ओके, प्रीबायोटिक आपको दही में मिल जाएगा और फ्रेगमेंटेड फूड में मिल जाएगा। पानी लगातार पीते रहिए, दिन भर में 2.5 से 3 लीटर। इसके ऊपर भी हमारा सेपरेट चैप्टर है, आप आते रहोगे तो मिलेगा आपको। आप खाने को अच्छे से चबाइए निगलने से पहले, इसके ऊपर हम आगे थोड़ी और बात करेंगे। आपके खाने में फाइबर रिच फूड होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल होने चाहिए आपके खाने में। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। फ्रेगमेंटेड फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीबायोटिक का काम करता है, वो होना ही चाहिए। आपको एक्सरसाइज एवरीडे करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉकिंग कर लो। वॉकिंग के ऊपर से भी हम कभी कभी बात करते हैं, किसी न किसी चैप्टर में बताया जाए कितना कैसा वॉकिंग किया जाता है। आप कैलोरी डेंस फूड नहीं लेके न्यूट्रिएंट डेंस फूड को खाइए। आप प्लांट बेस्ड फूड को ऑप्शन में रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, मतलब खाना खाने के बाद 2 घंटे के अंदर आप 2 घंटे बाद सो जाइए। अगर आप ज़्यादा जागे रहोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको भूख लगेगी। तो एक एक सिग्नल भी है, अगर आपको भूख लगती है वापस से, तो आप ये समझ जाइए कि आपको सोने का टाइम हो गया है, लेकिन आप सोए नहीं। ओके, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढिए। यहाँ पर आते रहोगे तो यहाँ पर भी आपको मिलते रहेगा। अब हम बात कर रहे थे खाना स्लो खाने की, उसके फ़ायदे क्या है? स्लो खाना कहाँ से चालू होता है? जब बहुत देर तक आप चबाएंगे। हमने तो स्कूल में पढ़ा था कि एक निवाले को एक बार अपने मुंह में कोई चीज़ डाल दिया खाने को तो उसको 32 बार चबाना चाहिए। क्या फ़ायदा?
वो टाइम पे समझ में नहीं आया। मैं आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ। ये जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो हमको एनर्जी देता है, इसका पाचन हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है। तो अगर हम उसको अच्छी तरह से पचाएंगे तो यहीं से वो पचना चालू हो जाएगा। ओके। और जब हम अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से पचाएंगे, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, वो अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। और हम जब ज़्यादा चबा चबा के खाना खाएंगे तो हम अच्छे से अपने आप को फिल करेंगे, जिसके वजह से हम कैलोरी डेंस फूड नहीं खाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप जूस मत पीजिए, है ना। जूस अगर पी रहे हो तो उससे अच्छा आप फ्रूट खाइए। फ्रूट खाने में आपको चबाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जूस में हमने फटाफट 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 पी लिया, और उस जूस के अंदर से अगर उसमें से पल्प निकाल दिया तो फाइबर तो चला गया, तो आपको फाइबर नहीं मिला, आपको सिर्फ एनर्जी मिली, जो उसका शुगर वाला कंटेंट है वो आपको मिल गया। उसी तरह से आप अगर कोई क्रंची सब्जी जब बनाते हैं तो उसको क्रंची बनाइए, ताकि उसको चबाने में टाइम लगे। ओके। ताकि आप ज़्यादा ना खाओ, ज़्यादा खाओगे तो फिर आपको ज़्यादा आपकी कैलोरी आपकी इनटेक हो जाएगी। ओके। आप जब आराम आराम से खाओगे तो आप पानी पियोगे। पानी एक्चुअली खाना खाने से पहले पीना चाहिए। अगर खाना खाने से पहले आपने पानी पी लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा उतना, मतलब पेट जल्दी भर जाएगा आपका। जब ये सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका डायबिटिक का रिस्क भी कम होगा, आपका मोटापा आने का भी कम कारण मोटापा आने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ओके। आपको जब भूख नहीं लगेगी तो आप फालतू की कुछ भी चीज़, स्नैकिंग कुछ भी चीज़ नहीं खाओगे। तो डब्बा खोल के, फ्रिज खोल के, कबाड़ खोल के आप देख रहे हो क्या पड़ा है, और आपने उसमें से चकली खा लिया, आपने उसमें से चिप्स खा लिया, वो नहीं होगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ है। तो अभी ये है कि हमें स्लो खाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले खड़े होके मत खाइए, बैठिए और आराम से रिलैक्स होकर खाइए। और अगर आपको खाना अगर आया है किसी बॉक्स में तो डायरेक्ट बॉक्स से मत खाइए, उसे प्लेट में रखिए, फिर आराम से खाइए। ऐसा खाना खाइए जिसे चबाने में टाइम लगे, सीधा निगल निगल ना जाएं आप। निगलोगे तो फिर ज़्यादा खाओगे आप। खाना खाने के टाइम पे किसी और चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप और चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो होगा क्या, आप ये भूल जाओगे कि आपने कितना खाना खाया, और फिर आप खाते रहो। स्पेशली जब आपने रात को खाना खा लिया और लेट नाइट तक जाग रहे हो, और वो टाइम पे आप टीवी देख रहे हो, और टीवी देखते देखते आपको भूख लगी है, और भगवान ने हाथ को हमारे इस तरह से बनाया है कि वो कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उससे सबसे अच्छा आसान कैसे मालूम है कि ऐसा उठा और हाथ मुंह में चला गया, तो अपना रहा हाथ मुंह में आराम से जाता है, और वही हम काम करते हैं। और वो भी टीवी देखते देखते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने 200 ग्राम या पाव किलो कोई भी स्नैक्स खा ली। अगर आप उसकी कैलोरी पढ़ोगे, 200 ग्राम अगर आपने कोई भी नमकीन या कोई चीज़ खा ली, ये आपको 1100 से 1200 कैलोरी देता है। इमेजिन करिए, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा मेरा बोलने का मतलब क्या है। एक और चीज़ जो आज, अगर आपने आज खाना नहीं खाया, या अगर आप कल सुबह तो कल दोपहर को जब भी खाएंगे तो ये टेक्निक को ट्राई करिएगा। जब भी आप चम्मच से खाना खा रहे हो तो एक बार निवाला मुंह में डालकर चम्मच को नीचे रख दीजिए प्लेट में, और जब तक आप उसको चबा रहे हो तब तक चम्मच उठाइए नहीं। इसके वजह से क्या होगा, फिर आप आराम आराम से खाना खाओ, है ना। और चीज़, अब हम आते हैं इस पे कि हमें कब खाना चाहिए। तो हमें जब भी खाना चाहिए, ये हमें इनर क्लॉक के हिसाब से खाना चाहिए। अभी इनर क्लॉक क्या होता है? इनर क्लॉक बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। ये अलग अलग काम वो अपने अपने समय से करते हैं ना। वो उनका उनका समय क्या है? उनका समय है सनराइज और सनसेट के बीच का, वो समझते हैं ये वक्त। वो और कोई बात नहीं समझते। उन्हें कोई घड़ी नहीं दिखती। घड़ी हमारे आंखों को दिखती है, हमारी किडनी को नहीं दिखती, उनके हमारे लीवर को नहीं दिखती। तो हमें सनसेट और सनराइज के बीच में देखना है। ओके। हमें खाली ये समझना है कि हमें जब सूरज उगता है और जब सूरज ढलता है, इसी के बीच में खाना है, बाकी के टाइम पे नहीं खाना है। बाकी के टाइम पे शरीर कुछ और काम कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर चार्ट बना के रखा है, उसमें से उसको यूज करके मैं पढ़ रहा हूँ। सुबह रात को 8 से 10 बजे के आसपास मेलाटोनिन रिलीज होता है।
ज़्यादा मात्रा में ना। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन आपके शरीर को बोलता है अब सो जाओ, वो आपके सोने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। आप सोचिए फिर वो टाइम पे आप क्या करोगे, आपको वही करना चाहिए। रात को 10 से 2 के बीच में अगर आप टाइम पे सो गए तो 10 से 2 के बीच में आपको डीप स्लीप आती है, गहरी नींद। कहा जाता है कि गहरी नींद अगर आपको थोड़ी भी आ गई तो बहुत अच्छा है, वहीं से आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। ओके, 2 से 4 के आसपास आपके बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम रहता है, और 4 से 6 के बीच में, सुबह 4 से 6 के बीच में कॉर्टिसोल रिलीज करना चालू करता है ना। कॉर्टिसोल रिलीज करने से क्या होता है, कॉर्टिसोल रिलीज करने से वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आपकी एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करने का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप समझो कहीं खड़े हैं, अचानक आपने देखा कि आपके पैर के ऊपर सांप आ गया, मतलब क्रॉस कर रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपके पैर को बजा रहा है। उस वक्त तुरंत आपका रिएक्शन जो भी होगा, वो रिएक्शन कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से। तो आप सोचिए, सुबह के टाइम पे कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है अराउंड 4 से 6 के बीच में, और आप 4 बजे तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, और फिर सोने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपका अंग तो बोलता है कि मैं तो कॉर्टिसोल बढ़ा रहा हूँ, आपको जागना है फिलहाल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सोने के टाइम पे सोना चाहिए, खाने के टाइम पे खाना चाहिए। अब सुबह से क्या होता है, सुबह आपका इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होता है ना। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके खाने से जो शुगर आता है उसको हर सेल तक पहुंचाता है। लेकिन जब सुबह आप सोए पड़े रहोगे, वो इंसुलिन तो आ रहा है आपके शरीर के अंदर से, रिलीज हो रहा है शरीर के अंदर, लेकिन उसको शुगर ही नहीं मिल रही उस टाइम पे जब चाहिए तभी। और तब फिर आप उसको तब दोगे शुगर खाने को जब उसको वो आराम के मोड पे चला गया, तो होगा क्या, तो शुगर ही होना है। तो टाइम पे खाना इसलिए जरूरी है। तो इस तरह से ये बॉडी क्लॉक बहुत ज़रूरी है। अब इसको सिंपल भाषा में समझना है तो इस तरह से समझिए, जब सूर्यास्त हो गया और जब तक सूरज उगता नहीं है तब तक खाने की ज़रूरत नहीं। जैसे सूरज उगा और सूरज डूबा उसके बीच में आप खा सकते हैं। जैसे कि फ़ारूक ने बताया था, आपका आखिरी खाना 6 साढ़े 6 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ये बेसिकली क्लॉक को देखिए, ये क्लॉक किस तरफ से डिस्टर्ब होता है। ये डिस्टर्ब होता है 3 चीज़ों से बेसिकली। एक तो लाइट, खास करके ब्लू लाइट। जब भी ब्लू लाइट हमारे आंखों में पहुंचती है तो ये ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है कि अभी तक उजाला है, हमें सोना नहीं चाहिए। जबकि शरीर के अंदर मेलाटोनिन हाई रिलीज हो रहा है, मेलाटोनिन जो आपको सुला रहा है, लेकिन वो लाइट आपको नहीं सुला रही। इसीलिए कहा जाता है कि आप मोबाइल और लैपटॉप से सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले दूर हो जाइए। डाइट, अब सोने के टाइम पे आप खाना खाओगे तो क्या होगा, बॉडी को ये लगेगा भाई नहीं ये तो खाना खा रहा है, मतलब इसको काम करना है, जागे रहना है। एक्सरसाइज करोगे, जब एक्सरसाइज करोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाओगे, नहीं, मतलब आपकी बॉडी एकदम एक्टिव मोड में आ जाएगी, जबकि सोने के लिए आपको रिलैक्स मोड पे होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब आप गलत टाइम पे करोगे तो फिर आपके बॉडी को प्रॉब्लम आएगी, सही टाइम पे करोगे तो आपके बॉडी को हेल्प मिलेगा। अब बॉडी क्लॉक क्या क्या रेगुलेट करता है, ये हमारी स्लीप क्वालिटी को रेगुलेट करता है। अगर आप अच्छी तरह से सोए हैं तो आपके माइंड को अलर्टनेस रहेगा, आपका हर काम पे फोकस लगा रहेगा। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करता है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये आपके हार्ट रेट को मेंटेन करने में मदद करता है, ये आपको भूख लगने में और नहीं लगने में मदद करता है। ये सारे काम आपके बॉडी क्लॉक कर रहे हैं, और बॉडी क्लॉक के हिसाब से अगर आपने काम करना चालू किया तो आपके बल्ले बल्ले। इसको इस तरह से देखिए, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। बॉलर बॉल डाल ही नहीं रहा और आप बैट घुमाए जा रहे हो, और जब बॉलर बैट बॉल डाल रहा है आप बैट हिला ही नहीं रहे, क्या होगा, है ना। इसलिए टाइम पे सब कुछ करना चाहिए। ये वही बॉडी क्लॉक है जो मैं आपको बता रहा था कि किस टाइम पे क्या होता है, किस टाइम पे क्या होता है। अब आपने क्या करना है, आपने न्यूट्रिएंट फूड खाना है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने उजाले में फैट प्रोटीन कार्ब अगर सुबह खा लिया तो बॉडी अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करेगी, और वही फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपने रात के टाइम पे खा लिया तो बॉडी अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेगी, है ना। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब जब रात को खाओगे और या तो दोपहर को खाओगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने सुबह खा लिया टाइम पे तो आपके गट बैक्टीरिया बरोबर रहेंगे। अगर आपने आपका इंसुलिन क्योंकि सुबह निकल रहा है तो आपका
शुगर बराबर से मेंटेन रहेगा। सुबह आपका प्रोटीन का टैंक खाली है, मतलब रात भर रिपेयर हुआ है आपके बॉडी के अंदर, तो सुबह प्रोटीन आपको बॉडी को प्रोटीन दे दिया, वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म सुबह सुबह अच्छा रहता ही है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, मेटाबॉलिज्म क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा इस शब्द को, लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है ये हमें कभी तक समझ में नहीं आया। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, इसको इस तरह से देखिए कि आप अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल कहाँ गायब हो जाता है ना? वही पेट्रोल कन्वर्ट होता है पावर में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। इसी तरह से जो भी खाना आप खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, एक्स्ट्रा ज्ञान आज के डेट के लिए। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के जोड़ के कोई चीज बनाना। इसके में क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिया आपके मसल्स, है ना? आपने खाने के टाइम पे मसल तो नहीं खाया था, आपने खाने के टाइम पे प्रोटीन के नाम पे दूध पी लिया होगा, दाल खा ली होगी, लेकिन उसके जो अलग अंदर 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 जो उसके अमीनो एसिड्स हैं, वो जब मेटाबॉलाइज हुए और फिर जाके आपका मसल बना। उसी तरह से जब आपने खाना खाया तो खाने को अच्छे से ब्रेक करके, तोड़ के, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, उसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ने ले लिया, छोटे 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 छोटे। अगर आपने एक पपाया खाया तो उसके अंदर विटामिन ए है कुछ, वो पूरा पपाया विटामिन ए नहीं है, उसके अंदर कुछ विटामिन ए है, तो उसको तोड़ तोड़ के उसके अंदर विटामिन ए निकाला और बॉडी ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये दो टाइप के मेटाबॉलिज्म है। जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है वो आपको बॉडी को एनर्जी देता है। बेसिकली एनर्जी आप कैसे यूज़ करते हैं, एनर्जी आप सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसके लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी आपके बॉडी के अंदर बॉडी को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, बॉडी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जो काम करने की एनर्जी है उसको देने के लिए होता है, डाइजेशन के लिए एनर्जी लगती है ना? तो मेटाबॉलिज्म को आप किस तरह से और एक चीज़ समझिए ना, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ, मतलब अगर एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपका वजन बढ़ने का चांस कम रहेगा, बशर्ते कि आप कम कैलोरी खाओ। और मेटाबॉलिज्म अगर आपका कम है और आप ज़्यादा खाओ तो फिर आपका तो जल्दी वजन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपको मेटाबॉलिज्म का रेट आपको पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खाया तो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा कैलोरी लेता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म वहाँ बढ़ जाता है। अगर आपने एक्सरसाइज करी तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मतलब आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जिससे आप कम कम पतले होंगे। अगर आप नींद अच्छी लिए हो तो मेटाबॉलिज्म का काम बराबर रहेगा। अगर नींद बराबर नहीं है तो मेटाबॉलिज्म काम बराबर से नहीं होगा और फिर आपके शरीर में सारी गड़बड़ी आनी चालू हो जाएगी। तो ये काफ़ी है। कहने का मतलब ये है कि आपको मेटाबॉलिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोटीन खाना है, एक्सरसाइज करना है और नींद अच्छी लेनी है। इसका मतलब ये है। अगर देखो, अगर आपने मेटाबॉलिज्म आपका बराबर नहीं है, रात के टाइम पे आपको सोना है, रात के टाइम पे आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा? सुबह आप उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन सुबह आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और सुबह आपको काम करना है, दोनों सिंक हो रहा है, तो आप अच्छे तरह से आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट भी दे पाओगे और बॉडी उसका अच्छा रिजल्ट आपके काम में भी देगी। इसको इस तरह से देखिए। प्रोटीन प्रोटीन इसलिए क्योंकि रात भर आपने, वैसे भी हमने कहा है कि रात को आपको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। और अगर आपने सपोज रात में आपने नहीं खाया तो क्या होगा? बॉडी ने तो रात भर रिपेयर का काम करके उसको सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, अब आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है। तो सुबह सुबह अगर आपने प्रोटीन आपके बॉडी को ज़्यादा दे दिया तो पहला काम तो ये होगा कि रात के ऊपर आपने बर्डन कम डाल दिया, क्योंकि अभी जो आने वाली रात है आप उसमें कम खाओगे, है ना? और सुबह आपने प्रोटीन अच्छे से खा लिया तो आपको दिन भर अच्छे से वो फील्ड रखेगा। और क्योंकि सुबह के टाइम पे इंसुलिन भी जल्दी ज़्यादा निकलता है, मैंने कहा था कि सुबह के टाइम पे इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होता है, तो क्या होगा? इसको इस एग्जांपल से देखिए। एक चार रास्ता है जहाँ पे सिग्नल है और एक चार रास्ता है जहाँ पे सिग्नल नहीं है। रात के टाइम पे इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा? आपने ज़्यादा खाना खाया, सारा इंसुलिन, सारे ट्रैफिक रोड पे रहेगी, उसी तरह से सारा कैलोरी, सारा शुगर आपके खून में ही रहेगा,
हर सेल तक नहीं जाएगा, क्योंकि सेल को नहीं चाहिए उस वक्त एनर्जी, क्योंकि आप सो रहे। और सुबह के टाइम पे अगर आपने खाया, मतलब सुबह के टाइम पे तो इंसुलिन भी है, बहुत सारी गाड़ियां अगर आ भी रही हैं तो सिग्नल सारा कंट्रोल कर रहा है, रास्ते एकदम स्मूथ हैं, खाली हैं, अच्छे से गाड़ियां चल रही हैं। मतलब ये कि सुबह के टाइम पे आपने खाना खाया तो उसकी जो शुगर निकली, वो शुगर को बॉडी ने इंसुलिन के साथ, इंसुलिन ने उस शुगर को पकड़ के आपके सेल के हर हर शरीर के हर सेल पे पहुंचा दिया, जिससे आपका एनर्जी अच्छे से यूज होगा। दूसरी चीज आपको समझनी है कि सुबह खाने से क्या होगा। सुबह खाने से ये होगा कि शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो एक मेंटेन रहेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। अच्छे बैक्टीरिया कितने होने चाहिए, बुरे बैक्टीरिया कितने होने चाहिए। नॉर्मली आप समझिए हेल्दी आदमी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया 85% के आसपास होने चाहिए और बुरे बैक्टीरिया उससे जितना कम हो सके उतना अच्छा। दूसरी चीज, कई तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए। ओके, कई तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए। कहा जाता है कि 2000 से 5000 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में होने चाहिए। तो ये मेंटेन होता है सुबह सुबह। उसके अगेंस्ट में फर्मिक्यूटिस, फर्मिक्यूटिस वो चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया तो अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, फर्मिक्यूटिस तो बेकार ही बेकार होते हैं। ओके, ये आपके वजन बढ़ाने में बहुत सारा और डायबिटीज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे, बहुत मतलब ये करप्ट है। यही वो आदमी है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। ओके, तो ये सारे कंट्रोल अगर आपने सुबह के टाइम पे खाना खाया तो सही होता है। इस तरह से आप देखिए, रात के टाइम पे है, अगर आपने खाना स्किप कर दिया तो बुरे बैक्टीरिया आ जाएंगे। खाना अच्छे से खा लिया, अच्छे समय पे खा लिया, अच्छे टाइम पे उठ गए तो आपका अच्छा बैक्टीरिया भी बढ़ जाएगा, आपका इंसुलिन भी अच्छे से है तो शुगर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, रात के टाइम पे खाना बंद करो, सबसे बढ़िया। 100 बात की एक बात। अब सुबह ज़्यादा क्यों खाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता दिया, मेटाबॉलिक रेट रात के टाइम पे कम रहता है, सुबह के टाइम पे अच्छा रहता है। रात के टाइम पे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम रहती है, ग्लूकोज टॉलरेंस कम रहता है और सुबह के टाइम पे अच्छा रहता है, इसलिए आपको उसको खाना चाहिए। सुबह के टाइम पे गट बैक्टीरिया आपके ऑल्ट्रेशन हो जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे आपने खाना खाया तो ऑल्ट्रेशन ठीक हो जाता है। रात के टाइम पे आपके शरीर में बॉडी की कमी हो जाती है, तो सुबह अगर आपने अच्छे से खाना खा लिया, प्रोटीन वाला नाश्ता कर लिया, तो आपका प्रोटीन बैलेंस बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया शॉर्टकट में कि हमें जो भी खाना खाना है वो सुबह के टाइम पे पक्का खाना है। ब्रेकफास्ट रेगुलर खाना है। क्या खाना है मैंने आपको बता दिया, कितना खाना है बता दिया। इसके अगर डिटेल्स में जाना है तो जिसने आपको यहाँ बोला है उनसे आप बात कर सकते हो 1 to 1। ये एक ब्रॉडर आपको पिक्चर दिखाई गई है। 1 to 1 आप उनके साथ बैठोगे, उनसे सवाल जवाब करोगे, अपने बारे में जानोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी। शॉर्टकट की एक बात कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप मत करिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट रखिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स हो, रिफाइंड नहीं हो, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हो, तकरीबन 25 से 30 ग्राम। ओके, फैट कम हो, फाइबर हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो। ओके, ये रहा, आपकी बॉडी का स्टेट बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो आपको हेल्थ इशू आने चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, रात में खाना मत खाइए, डे में खाइए। ये सब करते रहिए और शाइन करते रहिए। शाइन का मतलब क्या है, शाइन का मतलब ये है कि रोज़ सुबह जब भी उठो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। दूसरी चीज़, अपना न्यूट्रिशन पूरा करो। आपको लाइफ में कहाँ जाना है उसको विजुअलाइज करो। अपने गोल को एकदम क्लियर रखो कि मुझे ये पाना है। सिर्फ बिजनेस में नहीं, सिर्फ हेल्थ में नहीं, सिर्फ मानसिक संतुलन में नहीं, हर चीज़ में, है ना। और उसके लिए कुछ भी नई चीज़ सीखने की ज़रूरत हो उसको सीखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज जरूर करिए। इसके ऊपर भी हमारे चैप्टर्स आते रहते हैं, आप लोग यहाँ आते रहोगे
मिलता रहेगा आपको अच्छा सा ज्ञान, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। रुचिता, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मनोज। एंड जैसा कि मैंने कहा था, छोटे छोटे टिप्स लेकिन इतने आराम से समझाए हैं मनोज में। आई थिंक अगर हम इनमें से कुछ भी फॉलो करना शुरू करते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करते हैं और उसके तरफ काम करते रहें, तो आई थिंक we'll be in a much better position and take much better control of our health and lifestyle. With that, we come to an end of this session. Thank you so much. You've been a great audience, and see you in the next one next Monday. Until then, good night.